کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، بات نکلی تو ہر بات پہ رونا آیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو بتا دیں راجوری میں موت پہ بھی سیاست ہوئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آج ایک ایم ایل اے جس نے یہ بتایا کہ میں نے ہر دروازہ جو ہے اس پر جا کے نوک کیا، ہر دروازہ کھٹکایا، لیکن کسی نے کوئی بھی ذمہ داری سے ان بچوں کی جان بچانے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آیا۔ افسوس ہوا یہ بات سن کر کہ آج انسانیت راجوری میں شرمندہ ہوئی ہے۔ افسوس ہوا ان سیاست دانوں پر جو بڑے بڑے دعوے اور وعدے تو کرتے ہیں لیکن آج ایک غریب خاندان کی جان بچانے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آیا۔ افسوس اس وقت ہوا جب 17 لوگوں کی موت واقع ہو چکی اور پیر پنچال کے 8 ایم ایل اے جو ہے وہ خاموش نظر آئے۔ افسوس تو اس وقت ہوا جب پیر پنچال کے بڑھال علاقے میں معصوم بیٹیاں تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے رہی تھی، لیکن آج ان بیٹیوں کی میت پہ، ان کے جنازے پر بھی سیاست نظر آئی۔ آج یہاں تک بتا دیا کہ سینٹر اور اسٹیٹ گورنمنٹ کا آپس میں تال میل نہیں ہے۔ آج یہاں تک بتا دیا کہ این سی کا ایم ایل اے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ آج یہ بات سامنے آئی کہ ان بچیوں کے جنازے پر سیاست کی جا رہی ہے۔ آج یہ بات بھی سامنے آئی کہ کوئی بھی کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی مدد نہیں کر رہا ہے کہ ان بچیوں کی جان کو بچایا جا سکے۔ آج کہاں ہے وہ سیاستدان جو صرف ووٹ مانگنے کے لیے آتے تھے؟ آج گجر اور کشمیری، پہاڑی اور راجپوت کے نام پر لڑانے والے وہ سیاستدان کہاں ہیں جو ان بچیوں کے لیے آج سامنے نہیں آئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ آخر ایسے کیا مرض ہے آپ کو؟ میں آج کچھ ایسے الفاظ شاید استعمال کر جاؤں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن دکھ تب ہوا کہ جب بیٹیاں تڑپ رہی تھی ہاسپٹل میں، جب بیٹیاں تڑپ رہی تھی آکسیجن کے لیے، جب بیٹیاں تڑپ رہی تھی ایک جہاز کے لیے، کیا ان بیٹیوں کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ جناب آپ ان کو ایک جہاز پرووائڈ کرتے؟ کبھی آپ تو کوئی کمپین چلا رہے ہیں، کبھی آپ نعرے بازی دے رہے ہیں، کبھی آپ بڑے بڑے دعوے اور وعدے تو کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ زیرو پر ہم نے دیکھا کہ عوام کا کوئی بھی سگا نہیں ہوتا ہے۔ پچھلے 70 سے 75 سال کی میں بات کرتا ہوں، راجوری اور پونچھ کی عوام کو ہمیشہ سے بیوقوف بنایا گیا۔ کبھی مذہب کے نام پر یہاں سیاست ہوئی تو کبھی رنگ اور نسل کے نام پہ سیاست ہوئی اور کبھی کاسٹزم کے نام پر سیاست ہوئی۔ مت بناؤ مجھے فرصت کے لمحوں کا کھلونا، میں انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ یہ کہنا ہے ان بیٹیوں کا جو کہیں نہ کہیں ایک وینٹیلیٹر کے لیے ترس رہی ہیں۔ یہ ان حالات کا رونا ہے جو حالات آج راجوری میں بنے ہیں، لیکن افسوس کہ آج انسانیت شرمندہ ہے۔ افسوس کہ آج انسانیت ایک بار پھر انسانوں سے انسانیت کا سوال پوچھ رہی ہے کہ آخر آپ لوگ مردہ ضمیر ہیں کیا؟ کیا آپ لوگوں کے گھر میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، کیا آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے کیا؟ یہ حالات آج بڑھال پہ ہیں، کل کسی کے گھر اور ہوں گے تو تب آپ لوگ کیا کرو گے؟ کیا اس وقت بھی آپ سیاستدان منہ چھپا کر بھاگو گے؟ کیا آپ اس وقت بھی یہ کہو گے کہ جناب عمر عبداللہ سرکار کی سینٹر گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بنتی ہے اس لیے ان بچیوں کی علاج میں جو ہے وہ تاخیر ہو رہی ہے؟ کیا یہ چیزیں کچھ ہضم ہونے والی ہیں؟ جب آپ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو تب آپ ایک ووٹ کے بدلے میں ان کو نوکریاں بھی دے دیتے ہو، تب آپ ان غریب لوگوں کو سب کچھ دیتے ہو، فری گیس سلنڈر، فری بجلی، فری پانی اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ آخر ان بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ راجوری کے بڑھال علاقہ میں 17 لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ آپ کو بتا دیں تھوڑی دیر پہلے ایک اور بیٹی جس کی عمر 11 سال ہے، اس کو بھی تڑپتے ہوئے جی ایم سی لایا گیا۔ کل 4 بیٹیاں معاف کیجیے گا، ان کو بھی جی ایم سی لایا گیا۔ یہاں سے لوگوں کو دکھایا گیا کہ ایک چوپر آیا ہے، اس میں بیٹیوں کو شفٹ کیا گیا ہے اور پی جی آئی چندی گڑھ لے جائیں گے، لیکن افسوس 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 ان کو جموں میں اتارا جاتا ہے اور پھر ان کو جموں میں رکھا جاتا ہے، اور آج وہ بیٹیاں وینٹیلیٹر پر پڑی۔ ایک بیٹی کی حالت کافی نازک ہے۔ آج ایم ایل اے کوٹرنکا کہیں یا ایم ایل اے بدل کہیں، جاوید چودھری نے آج پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بڑے ایموشنل انداز میں یہ باتیں کہیں کہ آج میرا ساتھ کوئی نہیں دے رہا ہے۔ کیا پیر پنچال کے وہ 7 ایم ایل اے کہاں پر ہیں؟ سوال آج ان 7 ایم ایل اے پہ ضرور اٹھے گا۔ عوام سوال پوچھ رہی ہے کہ آخر ان تمام وجوہات کے پیچھے کی وجہ بتائیں کہ آپ سامنے کیوں نہیں آ رہے؟
17 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है, कोई भी एक मीटिंग तक नहीं ली गई। 17 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है, कभी ने उन लोगों के पास, इनमें से कोई सियासतदान जाकर 17 लोगों के घरों में जाकर किसी ने नहीं पूछा कि आपका खाना पीना कहां है भाई। कम से कम इंसानियत का सबूत तो देते। तमाम उन लोगों से आज सवाल है जो कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रहे थे, जो वोट के लिए लोगों के पांव पकड़ रहे थे, लेकिन आज अफसोस हुआ यह देखकर कि उन बेटियों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। मैंने पहले एक शेर अर्ज किया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली है तो हर बात पे रोना आया। आज अफसोस हुआ। आपकी राय क्या है? जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आप अपनी राय दीजिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, मैं आपकी तरफ से भी राय रखूंगा। इंतजामिया पे सवाल क्यों खड़े होंगे? पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा। जहां पर मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, आपने नहीं समझी, फिर दूसरा कौन समझेगा? ये बेटियां हमारी हैं, ये बेटियां हमारी हैं। इन बेटियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। अफसोस हुआ आज। आप तो कहीं कोई कैंपेन चला रहे हैं, आप तो कहीं मीटिंग्स कर रहे हैं, आप तो कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, लेकिन आपने कैबिनेट में यह नहीं पूछा कि बेटियों को चॉपर क्यों नहीं दिया गया। आपसे सवाल जरूर होगा। और ये मैदान, ये पब्लिक का मैदान है, ये अवामी दरबार है। यहां पर जरूर पूछा जाएगा कि आखिर उन बेटियों का कसूर क्या था। अरे कहां मेडिकल साइंस, जो बड़े बड़े दावे और वादे तो कर रही थी, लेकिन आज उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनाब हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये मौत क्यों हो रही। अरे 17 लोग मर गए। अमेरिका में 4 लोगों की मौत वाकया हुई, पूरी दुनिया हिल गई। WHO का कोई बयान ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये राजौरी पुंछ की वो मजलूम अवाम है कि जिस अवाम को हमेशा से सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। इनको यह सिखाया गया कि आप आपस में लड़िए, आपका हक फलाना खा जाएगा। अगर यहां पर वो मिनिस्टर बन गया तो आप खतरे में हैं, अगर ये मिनिस्टर बन गया आप खतरे में हैं। ओ मेरे भाई, कोई खतरे में नहीं। खतरे में है तो आज सिर्फ बढाल के वो मासूम बच्चे जिनकी जिंदगियां खतरे में नहीं। मैं ये कहूंगा कि उनके कातिल जो है वो यही लोग। अरे क्यों कत्ल ले रहे हो अपने सर पर? अगर आप लोगों से कुर्सियों पर बैठ के अवाम के साथ इंसाफ नहीं करना आता तो खुदा के लिए कुर्सियां छोड़ दीजिए आप। ये अवाम कह रही है। आज बड़ा दुखी हुआ। आज हजारों सवाल मेरे दिमाग में। किससे पूछें? जब राजौरी और पुंछ की अवाम को कभी इंसान समझा ही नहीं गया, जब राजौरी और पुंछ की अवाम को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, जब राजौरी और पुंछ की अवाम को सिर्फ इतना तक पता है कि आप लोगों के पास सीएम साहब आएंगे, पिछले 70 साल से आते हैं, एक तकरीर करते हैं और आपके कांधे पे हाथ रखते हैं, और राजौरी पुंछ की अवाम जो है उसी में खुश। हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं, हमारे पास अच्छी सड़कें नहीं। आज हमें एम्बुलेंस के लिए तड़पना पड़ता है। आज हमें एक जहाज के लिए तड़पना पड़ता है कि 17 लोगों को जहाज मुहैया नहीं हो पाया। आज एक चुना हुआ एमएलए सड़कों पे रो रहा है कि जनाब मेरे पास कुछ नहीं। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि अगर आप लोग सियासत में हैं, अगर आप लोग अवामी नुमाइंदे हैं, तो खुदा के लिए उस अवाम का भी तो ख्याल रखें। जब वो वोट देने के लिए जाते हैं तो आप लोग उनको न जाने क्या क्या सपने दिखाते। मत बनाओ मुझे फुर्सत के लम्हों का खिलौना। वो बेटियां जो वहां पर हॉस्पिटल में थी वो बोल रही थी, मत बनाओ मुझे फुर्सत के लम्हों का खिलौना। हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है। चीख रही थी एक बेटी, वीडियो वायरल हुआ है, देखा होगा आपने। बेटियां चिल्ला रही थी बचाओ। किसको बोल रही थी वो? अपने मां बाप को नहीं। अरे आप सियासतदानों को बोल रही थी। जब आप वोट लेने आए थे तब आपने न जाने क्या क्या ख्वाब दिखाए। तब आपने लोगों को बताया कि आप बेरोजगार हैं, हम आपकी नौकरियां लगा देंगे। तब आपने कहा जनाब पहले स्कैम हो गया, आज हम स्कैम नहीं होने देंगे।
आज एक और बेटी तड़प तड़प के वहां चिल्ला रही थी जब उसको हॉस्पिटल लाया गया थोड़ी देर पहले। साइमा कोसर उसका नाम, 11 साल की बेटी। सवाल किससे पूछेगी आवाम? आप कहते हैं जनाब सेंटर और स्टेट का तालमेल नहीं है। राजौरी और पुंछ के आवाम को आपने इस तरीके से समझ रखा है जैसे भेड़ बकरियां हैं, कोई मरता है तो मरे। एक शख्स की मौत कहीं वाकया हो जाती है तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है, लेकिन राजौरी और पुंछ में 17 बच्चे तड़प तड़प के मर गए। किसी ने आकर नहीं पूछा कि क्यों मौतें हो रही। 17 लोगों के मरने के बाद 86 लोगों का आना जाना शुरू हुआ। आखिर क्यों? सवाल बहुत सारे। आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा, आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा। ये वीडियोस उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो लोग इलेक्शन के वक्त में आते थे, हाथ जोड़कर कहते थे जनाब आप ही हमारे मां बाप हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं, आप हमारे। वो आपके लिए नहीं आते थे, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए आते थे। 70 और 75 साल से राजौरी पुंछ के लोगों के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। मैं चैलेंज करता हूं हर एक सियासतदान को, वो आए किसी बड़े लीडर के पास, जो आना छोड़ दें, अवाम के बीच में आए, हमारे पास आए। मैं एक अदना सा आदमी हूं, मेरे पास आए, मैं दिखाऊंगा आपको कि कहां इंसाफ हुआ है, क्या इंसाफ हुआ है। जहां पर हम लोग आज बुनियादी सहूलत के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसकी जान को रोएंगे। अफसोस हुआ आज ये देखकर, ये सुनकर कि बेटियों की जिंदगी नहीं बचा सके हम, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का तालमेल नहीं है। अगर आपका तालमेल नहीं है तो खुदा के लिए दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जितने भी आप सियासतदान हैं, इस्तीफा दे दीजिए, अवाम को छोड़ दीजिए अपने हाल पर, फिर अवाम खुद अपना रास्ता तय कर लेगी। कम से कम उनको सबज मार्ग मत दिखाइए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज बढाल के हवाले से कुछ थोड़ी अपडेट देता हूं। एमएलए कोटरंका जावेद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े इमोशनल अंदाज में उन्होंने ये तमाम बातें की कि जनाब जीएमसी के प्रिंसिपल जम्मू जो है उन्होंने हमारा तावन नहीं किया और बेटियों को पीजीआई चंडीगढ़ जाने से पहले ही जम्मू में उतार दिया। फिर उन्होंने कहा, मैंने उमर अब्दुल्ला सरकार से बात की और उन्होंने ये कहा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का आपस में राबता नहीं है, बेटियों की जान नहीं बचा सके। फिर यह कहा गया कि मैंने हर दरवाजा जाके नॉक किया, हर दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन मुझे यह कहा गया कि आप हेल्थ सेक्रेटरी से बात करें। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा आप डिवकॉम से बात करें, डिवकॉम ने कहा आप डीसी से बात करें, डीसी ने कहा सीएम से बात करें, और इसी तरीके से वक्त गुजर गया। कभी खुद पे और कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर बात पे रोना आया। अफसोस हुआ कि राजौरी और पुंछ की आवाम पिछले 70 साल से इस आवाम के साथ सुतेली मां जैसा सलूक किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। जो राजौरी और पुंछ ने खोया वो किसी ने नहीं खोया, चाहे वो 1947 है। तारीख के वो पन्ने गवाह हैं, तारीख के वो पन्ने गवाह है कि जो राजौरी और पुंछ ने खोया है वो किसी ने नहीं खोया। आप 1947 की वो तारीख उठा के देख लें, आप 1965 की तारीख उठा के देख लें, आप 1971 की तारीख उठा के देख लें कि मां यहां रह गई, बेटा वहां चला गया, बाप वहां रह गया, मां यहां रह गई, भाई एक यहां पर है, दूसरा भाई वहां पर है, रिश्तेदार आधे यहां पर हैं, रिश्तेदार आधे वहां पर हैं, और खोया राजौरी पुंछ ने। पीसा राजौरी पुंछ का हर मजलूम इंसान, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो सिख था। और आज भी गंदी और जलालत वाली सियासत का निशाना यही अवाम बन गई। आज इंसानियत शर्मिंदा है, इंसानियत शर्मसार है, और इन सियासी लोगों पर हजारों किस्म के सवाल खड़े हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढाल के हालात ठीक नहीं है, दुआ कीजिएगा कि बढाल के हालात अल्लाह ठीक करे, अपना गैबी फजल फरमाए। बाकी अब यह लगता है कि राजौरी और पुंछ की आवाम को सियासतदानों की नहीं, सिर्फ दुआओं की जरूरत है। और यह हकीकत भी है
کہ ان سیاستدانوں نے ہمیشہ سے استعمال کیا اس عوام کو اور آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا براہ راست ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔